Well, definitely we are in a place that was always a talk of the town. That also became a major issue during the Delhi elections. Also became a major issue for the voters when they went out to vote. That happened on the 5th. And also this place is also regarded as something that to be pure. But unfortunately, because all the pollution, the pollutants, all the particles, ammonia, this place has never been looked upon how it should. Now let me show you the visuals also before we go to our guests and talk about this very situation. Yes, I am at Yamuna. This is the Yamuna. This is the Kalini Kunj Ghat. And this becomes a talk of the town because when you see the visuals, you can actually understand the situation, how it looks, how it's supposed to look, how it's not looking. I mean, even though yes, we'll be having a apolitical discussion, but rather because it became a major political, talk of the town also, because there was Aam Aadmi Party hitting out the BJP saying that this will convert to the Sabarmati report, Sabarmati, river front. So yes, there was a lot of talk between the both parties in power regarding, even Congress was also hitting out on Aam Aadmi Party regarding the situation at this very place. But yes, it became a major issue also because there was a wide layer of froth also that was on this very Yamuna. And also during the Chhat also there were people also who were taking their holy dip also with the white froth, with that white froth also, that was playing a major issue also during this crisis. I'll also be talking to Pankaj Kumar, who's a volunteer at Save Earth Foundation. Sir, पहले तो बताइए, what is the foundation that you're working for? If you can tell our viewers what is it and what do you do? Sir, our foundation name, it's not a foundation volunteer group, that is Earth Warrior. So I'm a volunteer of Team Earth Warrior. And our work we work on a wastewater treatment. Mostly we are working on the sewage treatment plants, how the sewage treatment plants are working all across Delhi and India. And that's all about our organization. So now coming back to the main issue, that is where we are at this Kalinde Kunj Ghat, and we are also telling our viewers who are watching us on television, what is the problem? We've been coming here every year, we've been covering it, you've been working for years now. What is the problem that is happening in this sacred riverfront that we say, that is so polluted? When we are seeing it on live, also on ground also, there is that white layer of froth still visible. You can see all the dust and pollutants here. What is it that is lacking and what is the problem that is here basically? देखिए, अगर आप यमुना जी की प्रॉब्लम देखना चाहें कि यमुना में पोल्यूशन क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारा वेस्ट वाटर है, जो हम वेस्ट वाटर जनरेट कर रहे हैं हर दिन, वो हम प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पा रहे। अब मैं उसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। यमुना जी यमुनोत्री में अभी भी साफ है, वहाँ की BOD जो है 1 mg पर लीटर ए कैटेगरी का जल है, आप जल का आचमन कर सकते हैं। यमुना में यमुनोत्री में साफ है, वो हरियाणा आते आते उसकी पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, वो 4 हो जाता है, फिर आप आचमन नहीं कर सकते, नहाने के योग्य जैसा है, बस इतना। अब जब हरियाणा से जब दिल्ली आती है, जितना पोल्यूशन का लेवल, जो वाटर क्वालिटी हरियाणा दिल्ली को दे रही है, उससे जब दिल्ली से यमुना जी बाहर जाती है तो पोल्यूशन का लेवल 7000 गुना बढ़ जाता है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के टर्म में। फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक जीवाणु होता है जो ह्यूमन और एनिमल के मल में पाया जाता है। वो है कि 500 MPN नहाने वाले पानी में होना चाहिए। जब हरियाणा दिल्ली में पानी भेजता है तो दिसंबर 2024 की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वो 1200 MPN पर 100 ml है जब आ रही है दिल्ली में, बट दिल्ली से जब बाहर निकलती तो वो 84 लाख MPN पर 100 ml हो जाता है असगरपुर में। उसके बाद वो वहाँ से यूपी चली जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो वेस्ट वाटर, हमारा जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, वो हम प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो फीकल कॉलीफॉर्म है, जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है जो जा रही है यमुना जी में, और यमुना जी का पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका जल फिर किसी योग्य नहीं बचता। 500 MPN आप नहा सकते हैं, 50 MPN पीने के योग्य होता है, बट यहाँ पे आप देखिए 84 लाख। एक बार हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए MPN का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ये होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, इसको कहते हैं। मतलब कि ये बताता है कि 84 लाख 100 ml जब आप पानी उठाएंगे यमुना जी का असगरपुर में, तो उनमें 84 लाख पीसेस जो है वो बैक्टीरिया होगी जो आपके पैखाने में पाया जाता है। वो बैक्टीरिया 84 लाख उनकी संख्या है उसमें।
तो ये सिंपल सा आंकड़ा। एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को भी थोड़ा अपने ग्लव्स भी पहना एक बार दिखा दें कि आप जो 100 ml का या जिसका आप बात कर रहे हैं कि ये अगर आप बता दें ये जो पानी है अभी आपने जो उठाया है ये क्या इसमें क्या नेगेटिव फैक्टर या इसमें क्या अलार्मिंग फैक्टर है आपकी नज़र में? देखिए अलार्मिंग फैक्टर तो बहुत सारे हैं। इनमें जो है आपको फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बहुत हाई है, इनकी बीओडी हाई है। 3 mg पर लीटर बीओडी होनी चाहिए नहाने वाले पानी में। जहाँ पे हम खड़े हैं ये ओखला बैराज है, दिल्ली का आखिरी बैराज, यहाँ पे इसकी जो है बीओडी 37 mg पर लीटर है, मतलब नहाने वाले पानी से 12 गुना ज़्यादा इसकी बीओडी है। फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 275 गुना ज़्यादा यहाँ है, आगे जाके ये 7000 गुना हो जाता है जब दिल्ली के सारे ड्रेन्स मिल जाते हैं इसमें। तो इसका कारण यही है कि ये पानी अभी किसी योग्य नहीं है। आप ह्यूमन तो छोड़िए, एनिमल अगर इस पानी में चले जाए तो उनको भी रोग हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से किसी भी मतलब बहुत डेंजरस है ये, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ से झाग हटाता हूँ, देखिएगा आप यहाँ। अब मैं इस पानी को यहाँ पे डालूंगा, आप देखेंगे ये झाग फॉर्म होती है। ये पानी कहीं भी आप डालेंगे इसमें इतना फास्फेट की मात्रा है कि ये झाग बन रही है। और इसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि किसी भी जीव के सरवाइव होने के लिए सबसे ज़रूरी है, जब हरियाणा पानी देता है दिल्ली को तो डिजॉल्व ऑक्सीजन दिसंबर 2024 में 6 mg पर लीटर से ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे वो शून्य हो जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। तो मतलब अगर यहाँ फिशेस हो तो वो सर्वाइव कर पाएंगे? सर्वाइव कर, बिना ऑक्सीजन के कोई नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो ऑक्सीजन तो चाहिए उनको, डिजॉल्व ऑक्सीजन ही नहीं है। फिश आएगी 2-1 घंटे में ख़त्म। अच्छा, छठ पूजा के ड्यूरिंग जब छठ चल रहा था तब आई थिंक ये झाग और ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, तो इसमें लोग नहा भी रहे थे, तो उनके लिए भी हजार्डियस हो सकता है आपके हिसाब से? ये हजार्डस तो हैं ही। ये इस पानी में आप अगर मेरा हाथ थोड़ा सा गया है, मेरा हाथ जल रहा है अभी, आप इस पानी में हाथ डालेंगे जल रहा होगा। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा होगा। अभी भी आ रहा है? अभी भी आ रहा है। तो वो कारण क्यों है, वो स्मेल क्यों है? क्योंकि इनमें इतने सारे कंटामिनेशन है कि वो आपके नाकों तक पार्टिकल्स बन के पहुँच रहे, इसलिए आपको ये इतनी गंदी बदबू आ रही है। हाथ डाल रहे हैं, हाथ जल रहा है, किसी भी योग्य नहीं है पानी। छठ के पर्व में जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो आस्था की वजह से जा रहे हैं, इस मतलब ये नाले में जा रहे हैं, ये नदी है ही नहीं, नाला है, और नाले में जाके पूजा पाठ करके इस नदी के जो ये पोल्यूशन उसको ऊपर ला रहे हैं। अगर छठ नहीं होता, मुझे लगता है अगर छठ का व्रत नहीं होता, इलेक्शन नहीं होते, तो यमुना का मुद्दा भी नहीं उठता। हम आते ही तब है छठ में और इलेक्शन में, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि निगलेक्टेड है, ये ऐसा हो रहा है। आपने एक रिपोर्ट भी मेरे साथ शेयर किया था, आई विल बी प्लेइंग दैट रिपोर्ट एज वेल व्हेन वी आर आल्सो शोइंग टॉकिंग अबाउट इट। व्हाट इज द रिपोर्ट दैट यू सेंट, इफ यू कैन इन अ ब्रीफ टेल आवर व्यूअर्स आल्सो हु आर वाचिंग अस इन टेलीविजन राइट नाउ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपोर्ट एंड व्हाट इट सेज? देखिए, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, वो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के दिसंबर मंथ की रिपोर्ट है। आप किसी भी मंथ का रिपोर्ट उठा लीजिए डीपीसीसी का, तो आप देखेंगे जब पल्ला में यमुना जी एंटर होती है तो पानी ठीक ठाक होता है, बट दिल्ली से जब बाहर निकलती है वो किसी योग्य नहीं बचता। उसका सबसे बड़ा कारण है, मैंने आपको एक और रिपोर्ट भेजी है, ड्रेन्स वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। दिसंबर 2024 में जो है 17 ड्रेन्स में फ्लो थी, मतलब पानी था। ड्रेन्स की एक वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया होती है कि ड्रेन्स के पानी का बीओडी 30 mg पर लीटर या उससे नीचे होना चाहिए, पर दिल्ली के 17 में से एक भी ड्रेन ऐसा नहीं जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैट करे। और उनके साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार क्लेम करी कि हमने 13 ड्रेन्स को ट्रैप कर लिया। आपने अगर ट्रैप कर लिया तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड एक भी ड्रेन का क्यों नहीं मिल रहा है? 17 में से 5 ड्रेन ऐसे हैं जिनकी बीओडी 100 mg पर लीटर से ज़्यादा। 100 mg पर लीटर ड्रेन का बीओडी होने का मतलब क्या है कि उस ड्रेन में सीधा सीधा रॉ सीवेजेस बहाए जा रहे हैं बिना ट्रीट किए। जब दिल्ली में 37 ट्रीटमेंट प्लांट है, वो प्रॉपर अगर काम करती, जो 37 STP जब एग्जिस्टिंग में वर्किंग है और 3 आपके ऑपरेशंस में, अगर वो ईमानदारी से काम करती तो यमुना जी की स्थिति बहुत बेहतर होती। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था कि जून 2024 तक दिल्ली की ट्रीटमेंट कैपेसिटी 964 MGD हो जाएगी, 10 BOD 10 TSS पे। पर आज अगर मैं जनवरी 2025 की बात करूं तो 406 MGD 10-10 पे ट्रीट हो रहा है, बाकी के जो 400 MGD है वो बाईपास हो रहा है। तो यहाँ पे ये आता है कि हमने जो टाइमलाइन दी कि हमारी 964 MGD कैपेसिटी हो जाएगी ट्रीटमेंट की, क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप सेंसिटिव नहीं है, हमको यमुना से मतलब ही नहीं है। तो जो टाइमलाइन दिए जा रहे हैं,
सरकार के द्वारा या अथॉरिटीज़ के द्वारा वो टाइम पे कंप्लीट हो, तभी यमुना साफ़ होगी। यमुना साफ़ तभी होगी जब अपने वेस्ट वाटर को हम प्रॉपरली, जो गाइडलाइंस है CPCB की 2015 की 10 BOD 10 TSS पे, तभी यमुना साफ़ होगी। देखिए 2015 में गाइडलाइंस आई, हम देश की राजधानी में है, जो कि एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम देखिए अपने वेस्ट वाटर को 10-10 पे ट्रीट करके नदी को साफ़ कर दिया, बट आप फेल हो रहे हैं एग्जाम्पल सेट करने में देश की राजधानी में। क्यों? आप जो व्यूअर्स हैं हमारे देख रहे होंगे, जो दिल्ली के व्यूअर्स हैं या और भी अन्य देशों के व्यूअर्स हैं, अन्य स्टेट्स के व्यूअर हैं, उनके लिए आप क्या, स्पेशली मैं दिल्ली आइट्स की अगर बात करूँ, NCR लोगों की बात करूँ, आप क्या अर्ज करेंगी कि उनको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप अपने हिसाब से, आप वॉलंटियर है, आप काम कर रहे हैं, आप क्या मतलब क्या एडवाइजरी देना चाहते हैं पब्लिक के लिए कि अगर आप आओ तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, आप मत आओ, क्या बोलना चाहते हो आप? देखिए मैं तो दिल्ली के हर एक व्यक्ति से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप एक बार यमुना जी के घाट पे आए, आपके पास जो भी घाट लगता है, और यमुना जी को आप देखें, यमुना जी को आप देखें और आप देख के सोचें ये वो नदी है जिसकी वजह से दिल्ली एग्जिस्टेंस में आई। यमुना नहीं होती तो दिल्ली भी नहीं बसता, पर वो नदी आज दिल्ली, जिस नदी ने दिल्ली को बसाया, आज वही दिल्ली ने इस नदी को नाला बना दिया। तो आप आइए देखिए, बट उनके साथ साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हम लोग नदी पे आते हैं तो हमारा ये काम होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की वस्तु नदी में न डालें। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको प्लास्टिक दिखेंगे, फूल दिखेंगे, ग्लव्स, क्या आप इसके लिए यमुना जी पे आ रहे हैं ये डालने के लिए? आप आइए यमुना जी को देखिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल कीजिए कि हम अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट क्यों नहीं कर पाए। पीछे भी अगर हम देखें, वहाँ भी आप जी। अगर देखें तो वहाँ भी एक आइडल हाफ मूर्ति सबमर्ज्ड है, जी जो शायद होना जी नहीं चाहिए, या जी ये जो हालत है ये भी आई थिंक एक ऐड करता होगा पोल्यूशन के लिए। जी बिल्कुल। आप इवन अगर एक फूल डालेंगे तो वो भी पोल्यूशन है। देखिए नदी पानी के लिए है, उनमें आप सॉलिड क्यों डाल रहे हैं? हम अगर पानी पी रहे हैं, उनमें ला के इतना सा मिट्टी डाल दिए, पानी पी पाएंगे हम? आप कह रहे हैं नदी में मिल जाए, नहीं। नदी में आप कुछ भी डालेंगे, अगर एक फूल का टुकड़ा भी डालते हैं तो उसको भी गलाने के लिए बैक्टीरिया लगेगी तो उनका जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, उनकी BOD बढ़ेगी। तो एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप नदी पे आइए, नदी से जुड़िए, पर आप कभी भी किसी भी प्रकार की वस्तु नदी में नहीं डालें। और सर वहाँ भी अगर हम देखें, इन द मिडल ऑफ द रिवर आल्सो यू सी अ लॉट ऑफ गार्बेज आल्सो, दैट इज देयर इज अ ब्लैक polythene poly bag also. So I mean these are all adding to these pollutants and this the alarming level also that is in this area as such. या जो आप देख रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम नदी में डाल दें, वो नाला डाल दे, केमिकल डाल दे या प्लास्टिक डाल दे, सभी कुछ पोल्यूशन को जो है ना बढ़ा रही है। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, अमोनिया का एक फैक्टर नज़र आ रहा था जब हम कवर भी कर रहे थे रिसेंटली, तो ये हमारे दर्शकों को बताइए अमोनिया का क्या फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा है यमुना में, और उसमें क्या दिक्कतें दे रही है? देखिए अमोनिया एक बहुत ही, कहें तो बहुत ही बड़ा पोल्यूटेंट है नदियों के लिए। अमोनिया होता क्या है कि अगर आपके पानी में एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा हो गई तो वो पानी आप पी नहीं सकते, ना ही उस पानी का किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते। तो यही होता है कि अमोनिया का लेवल कम होना चाहिए, क्योंकि वो आता कहाँ से, बहुत सारे सोर्स है। हमारे जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर उनसे भी आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से भी आता है, और जो एग्रीकल्चरल रनअप्स होता है, जो हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं या जो हम वो डाल रहे हैं, क्या कहते हैं, नदी में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं, वो जब बह के आता है बारिश के साथ तो उससे भी अमोनिया बढ़ती है। तो ये तीनों फैक्टर है, अगर हम अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं करेंगे तो पानी में अमोनिया बढ़ेगा, BOD बढ़ेगा, फिकल बढ़ेगा। इसका एक ही कारण है कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर बीइंग फ्लोन इनटू द रिवर, दैट्स व्हाई यू सेइंग द अमोनिया लेवल हाई, फिकल क्वालिफॉर्म हाई, other things like a BOD, COD, TSS, all the things are high because untreated wastewater being dumped into the river throughout the Uttarakhand, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, everywhere. And I have just one last question for you. What can be done to better this so that this does not look, I mean I know it looks like a long process now because it's been years that you've been working for this, we've been covering, but we see that there is no solution to it as of now. But what according to you, since you've been working on this, you know something that could be done better, what according to you can be done better so that the next time when we come here, or the next generation that come here, they don't see something like this? देखिए solution, we have working on solution, but we have to be more sensitive. Solution is treat the wastewater, the STPs which we made, 37 STPs which we have in Delhi,
and 3 is running on trial. If all the STPs work, ईमानदारी से उन STPs को आप चला लीजिए. और दिल्ली जल बोर्ड ने अभी एफिडेविट में ये वादा किया है कि दिसंबर 2025 तक दिल्ली की जो है ट्रीटमेंट कैपेसिटी हम लोग कोशिश करेंगे 964 MGD कर दे. अगर ये दिल्ली जल बोर्ड अगर ये वादा पूरा करता है तो दिसंबर 2025 के बाद आप यमुना जी के पोल्यूशन का 90% ख़त्म हो जाएगा. बस हम यही कह रहे हैं कि आपकी जो पॉलिसी आप ग्राउंड पे लगा लीजिए, कुछ नहीं मांग रहे, पॉलिसी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए, नदी साफ़ हो जाएगी. BOD यहाँ पे अभी 33 है, इसकी 10-9 हो जाए, ये पानी ऐसा दिखेगा ही, ना ही इसमें झाग दिखेगा, ना ही बदबू आएगी, ना ही वहाँ पे वो 84 लाख MPN/100 आपका फीकल क्वालिफॉर्म होगा. एंड एज पब्लिक को क्या करना चाहिए टू मेक श्योर दैट समथिंग लाइक दिस डज नॉट? पब्लिक जिम्मेदार है सॉलिड वेस्ट के लिए, तो वही कहेंगे कि आप प्लास्टिक हो, मूर्तियाँ हो या कपड़े हो, किसी भी प्रकार की वस्तु नदी में न डालें, फूल भी ना डालें. हर कुछ जो है पोल्यूशन ऐड कर, एक तो नाले तो सरकार डलवा ही रही है, आप उस पर आके और प्लास्टिक डाल देते, तो इन चीज़ों से बचे. और नदी पानी के लिए होता है, उनमें जो है फूल पत्ती और ये जो है प्लास्टिक के लिए नहीं है, तो वो ना डालें. अगर नदी में प्लास्टिक बहते आपको दिखे तो कैसा गंदा तो लगेगा, तो इनसे बचे और थोड़े कॉन्शियस होकर हमको जीना चाहिए ताकि नदी स्वच्छ रहे. नदी स्वच्छ होगी तो जीवन स्वच्छ होगा, क्योंकि इसी से जीवन है. अगर ये बस ख़त्म हो गई तो फिर आप जीवन बहुत मुश्किल है आपके लिए बचाना. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर. सो येस, दैट वाज पंकज कुमार who spoke to us and said what can be done better, what can be done to be improved, to improve the situation of this. And he even stated a lot of things that needs to be rechecked. He spoke about the 37 wastewater treatment plants, the 3 that is being operational. He spoke about the ammonia factor and other important aspects as well that needs to be looked upon. Before I wrap up, I'll just again show you a bit of the visuals and show you and make you aware to all the public who are watching on Sun TV that how alarming this entire thing looks to you. You know, when you see this, you have an idea, you get an idea that this is what it looks like, even though you see him still working for it, you know, trying to make things better for us or the next generation who will be coming. But you see the alarming, and again I'm showing you, or rather attempting to show you, so it looks alarming. And one, be it the government, be it the public, can be more aware and do something to create a message that something like this should be averted. And Yamuna, which we consider as a goddess also, you know, something as pure as this river, should be remained all these waste free and should be remained free flowing. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Kunal for NewsX Delhi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.